अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज अपने बल पे की सीरीज का एक और वेबिनार हाजिर है। आज का वेबिनार नंबर 40th, यानी तकरीबन हम 3.5 साल होने वाले हैं हमको अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला स्टार्ट किए हुए। और आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट बड़े एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं अपने यूथ के लिए। आज लेके आज अपने बल पे का वेबिनार है। हमारी ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो यंग प्रोफेशनल है, यूथ हैं। डिजिटल स्किल्स इन 2025 फॉर जॉब मार्केट। डिजिटल स्किल्स जॉब मार्केट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, उसके लिए आजकल डिजिटल का दौर है। आजकल इवन स्कूल के बच्चे जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज कर रहे हैं, बट हम ओवरऑल डिजिटल स्किल्स की बात कर रहे हैं। आज के टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमने बड़े लर्नड स्पीकर्स को इनवाइट किया है। लेट मी इंट्रोड्यूस स्पीकर नंबर 1 जो है हमारे साथ, वो हैं जी रक्षंदा मेहर साहब। Rakshanda Meher, General Manager, Kuza Ventures and Management Consultant. Rakshanda is a seasoned HR professional with over 15 years of experience, distinguished by a steadfast commitment to transformation and a talent for innovation. She excels in driving positive change within diverse organizations, ranging from small enterprises to large corporations. Rakshanda's expertise spans strategic HR planning, learning, and development, project management, data analytics, fostering inclusive organizational cultures. Her versatility makes her an invaluable asset for organization navigating today's complex business landscape. Prashanda, welcome to our webinar. Thank you so much for joining us. आज की जो सेकंड स्पीकर है हमारी, वो है ताहिरा खटक साहिबा। ताहिरा खटक, वाइस प्रेसिडेंट HRBP and People Strategy, Telenor. Tahira is a seasoned HR professional with extensive experience in the telecommunication industry. As VP HR Business Partnering and People Strategy at Telenor Pakistan, she is specialized in organization design, change management, and digital transformation. At Telenor, Tahira has held impactful roles, including head of digital customer experience and product design and HR business partner digital. Prior to this, she contributed to strategic HR initiatives at Mobilink, which is Jazz now, as lead HR business partner, technical and HR relationship manager. Passionate about leadership, transformation, and people strategy, Tahir is committed to mentoring future talent and encouraging growth in the dynamic work environments. Tahira, welcome to our webinar. Thank you so much for joining us. और इसके अलावा जो हमारे साथ रिसोर्स पर्सन है, मैं हमेशा इसी तरह तारुफ करवाता हूँ, अरशद महमूद आकिब साहब, जिनका ब्रेन चाइल्ड है अपने बल पे। जो 40 वेबिनार्स आपको नजर आते हैं अपने बल पे जो काम कर रहा है, अरशद आकिफ की सोच थी जो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया उनकी और उनकी टीम ने, जिसमें मैं भी शामिल हुआ। हमने मिलकर इसको यहाँ तक पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद भाई, अरशद आकिफ इज a trainer, entrepreneur, HRM expert, and Chief Executive Officer of ASK Development. Arshad Akif is an HRD professional, consultant, and entrepreneur with over 25 years of experience in corporate and development sectors in the field of human resource management, management and leadership, HR outsourcing, youth development and employment, and soft skills. Akif is a member of ISO 260 two international working groups on recruitment and diversity and inclusion. Also member of the National Mirror Committee of PCQCA Pakistan on HRM standards development. Arshad bhai, वेलकम टू वेबिनार, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अब हम टॉपिक पे आते हैं जी, डिजिटल स्किल्स इन 2025 फॉर जॉब मार्केट। द डिजिटल रेवोल्यूशन हैज रीशेप्ड इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड, creating exceptional opportunities for youth equipped with right skills. Recent graduates need to actively learn new digital skills to find jobs in 2025. Even मेरे ख्याल में अब to live in this era you need digital skills. सबसे पहले रक्षंदा मैं आपके पास आऊंगा। थोड़ा सा हमारी ऑडियंस यंग यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, अपकमिंग ग्रेजुएट्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, तो डिजिटल स्किल्स की इंपॉर्टेंस होती क्या है, डिजिटल स्किल्स और उनकी इंपॉर्टेंस, और 2025 में किस किस्म की डिजिटल स्किल्स हमें जरूरत होगी, इसके ऊपर प्लीज रोशनी डालिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू अर्शिद साहब एंड खुरम फॉर हैविंग मी इन दिस पॉडकास्ट, एंड थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। अच्छा, अगर हम डिजिटल स्किल्स की बात करें तो इन द मॉडर्न एरा डिजिटल स्किल्स आर नो लॉन्गर it's not like a luxury or something fancy. It is like since 2016 यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेस टू इंटरनेट या डिजिटल कनेक्टिविटी को आपका बेसिक ह्यूमन राइट करार दिया है। तो डिजिटल स्किल्स को अगर हम डिफाइन करने पाए तो दीज आर नॉट जस्ट कोई स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स को हम इस तरह डिफाइन करें एक्सेप्टली इस तरह दी एनी स्किल that you can effectively use to leverage technology for a wide range in context, वो डिजिटल स्किल्स कहलाती हैं। चाहे फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, हम कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन को हम यूजुअली कहते हैं इट्स अ सॉफ्ट स्किल, लेकिन अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें तो यूजिंग टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट,
इसी तरह अगर हम साइकोलॉजी हैज बीन अ टॉपिक जिसको हम सब अक्सर यूज करते हैं, बट दीज डेज इफ यू लुक इनटू डिजिटल साइकोलॉजी की लोग बहुत बात कर रहे होते हैं कि हाउ साइकोलॉजी कैन बी यूज टू डिजिटली रीड पीपल और माइंड सेट्स ऑफ पीपल ओवर इंटरनेट। तो डिजिटल स्किल्स आर एनी स्किल्स जो आप टेक्नोलॉजी को लेवरेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। और व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट, जिस तरह मैंने भी कहा, सिंस 2016 यूनाइटेड नेशंस हैज declared access to internet connectivity, access to broadband and access to technology as a basic human right. और अगर आज से आप 2-3 साल पहले भी बात करते तो it might be confusing or not really acceptable to a lot of people कि आपकी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन पोस्ट कोविड जिस तरह या ड्यूरिंग कोविड हमने देखा हमारे वर्क प्लेसेस ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आज से 4 साल पहले 5 साल पहले अगर आप सोचते आप अपने घर से बैठ के काम करेंगे, कहेंगे भाई कौन करने देगा। बट नाउ दैट्स द रियलिटी एंड आई नो सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव स्विच्ड to partial work from home or hybrid workforce models. So with the passage of time the world is adopting technology. Technological awareness बहुत हो रही है, आपकी new technologies increase हो रही हैं, generative AI आज से 3-4 साल पहले it might have been a buzzword, लेकिन आज मैंने सुबह से लेके कोई 4-5 बार जो है वो अपना चैट जीपीटी यूज किया है। एक बार मुझे यूट्यूब की वीडियो को देखने का टाइम नहीं था, उसको समराइज करना था, उसके लिए मैंने जेमिनी किया। एक फैक्ट को वेरीफाई करना था, परप्लेक्सिटी यूज किया। सो वी आर यूजिंग सो मेनी थिंग्स। तो आज के दौर में जस्ट टू सर्वाइव, नॉट ओनली मतलब थ्राइविंग तो एक नेक्स्ट स्टेप है, सर्वाइव करने के लिए भी यू शुड हैव डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल स्किल्स की नो हाउ आपको होनी चाहिए। इट्स नो लॉन्गर अ फैंसी और अ लग्जरी, इट्स एन इम्पेरेटिव टू सर्वाइव। कौन सी स्किल्स हैं? बेसिक अच्छा, जिस तरह मैंने पहले कहा कि कम्युनिकेशन कहने को इट्स अ सॉफ्ट स्किल, बट डिजिटल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले तो आपको एक डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, डिजिटल माइंडसेट होना चाहिए। यू शुड नो लॉन्गर बी थिंकिंग कि भाई मैं ऑफिस के काम ऑफिस में, जिस तरह अगर आज से आप 20 साल पहले की 25 साल पहले की बात करें, व्हेन सेल फोन्स वर नॉट दैट कॉमन, तो लोगों के घर पे फोन आता था। हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि आपका मैनेजर जो है रात 10 बजे आपको कॉल करेगा या कोई मैसेज भी ड्रॉप कर देगा। सो विद पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स आर इवॉल्विंग। तो जो स्किल्स की आप बात करें, एक डिजिटल माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। देन यू हैव टू स्कैन द एनवायरनमेंट लाइक दीज डेज। अगर आप डिजिटल स्किल्स की बात करें, बेसिक आपकी जो ऑटोमेशन या वर्ड प्रोसेसिंग स्किल्स हैं, उनके साथ साथ जनरेटिव एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और स्पेशलाइज स्किल्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ कैरियर एस्पिरेशंस, तो अगर आप इफ यू आर फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड तो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स जो होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। Prompt engineering not only for IT but for all sects and other skills also, depending upon which area or expertise जिस तरह students हैं। IT वालों के लिए एक different set होगा, जो आपके civil engineers होंगे या engineering, उनके लिए slightly difference होगा, लेकिन basic आपका digital mindset होना, prompt engineering and all those basic essential soft skills, उनको technology के साथ आप merge करके कर सकते हैं। Those are the basic skills. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। ताहिरा, हम आपकी तरफ आएंगे। ताहिरा खर साहब, देखिए डिजिटल स्किल जैसे भी रक्षंदा डिफाइन कर रही थी, प्लीज ऐड ऑन दैट। और ये देखें कि क्या वजह है कि इट्स अ मस्ट नाउ। जैसे मैं टोटली एग्री कि यूएन ने इसको ह्यूमन राइट्स में डाल दिया, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, ह्यूमन राइट्स में आ गया। बट ये कि हम पाकिस्तानी जो मार्केट की बात करें तो डिजिटल स्किल्स आप प्लीज ऐड करें रक्षादा की डिस्कशन में। प्लस क्यों जरूरी है, क्या वजह है कि व्हाई इट्स सो एसेंशियल। Thank you so much, for inviting me and giving me this opportunity to interact with the youth. Just to add on digital skills, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पढ़ रही थी, एंड बाय 2035 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज प्रेडिक्टिंग कि 85 मिलियन जॉब्स जो है करंट वर्ल्ड के अंदर 85 मिलियन जॉब्स जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी। ह्यूमन जॉब्स जो है वो मशीन्स रिप्लेस कर देगा उन जॉब्स को। सो अगेन नॉट सो न्यू फिनोमेना। एक हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फेज से पहले गुजरे हैं, दुनिया ने देखी है एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की फेज, और अब हम एक डिजिटाइजेशन की फेज से पाकिस्तान अभी गुजर रहा है, बाकी दुनिया थोड़ा कुछ साल पहले गुजर चुकी है।
बट बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड इज सो फास्ट पेस कि जिस तरह इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन को टाइम लगा, डिजिटल एवोल्यूशन को उतना टाइम नहीं लग रहा. सो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ डेकेड्स कि हम पाकिस्तान जो है वो इस रेवोल्यूशन से इम्पैक्ट नहीं होगा. एंड हेंस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. अगर हम लोगों ने मतलब अपने पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स में देखें तो वैसे तो हजारों प्रॉब्लम्स हैं, बट से इफ वी पिक वन मेजर स्ट्रेटेजिक problem for our country, it's primarily how do we fix our economy. और इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए आप देखते हैं, अच्छा जी, हम कैसे अपने डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को उनको कैसे इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव बना सकते हैं. और उसके अंदर फिर बात आ जाती है कि अच्छा यार, हमारे मुल्क में तो उस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं है, इंडस्ट्री भी नहीं है, तो लोग कहाँ जाके काम करें. तो डिजिटाइजेशन और डिजिटल वर्ल्ड की वजह से इस वक्त वो एक्सक्यूजेस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं. दैट इज वन अरीना जहां हम अपने आप को अगर रीस्किल करें और अपने आप को फोकस कर सके एज अ कंट्री भी, तो हम लोग बहुत क्विकली अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं. और जो हमारी यूथ है, अगर वो डिजिटल स्किल्स, एंड बाय डिजिटल स्किल्स प्राइमरली जो रक्षांदा ने बहुत अच्छा emphasize किया कि इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू यूज टेक्नोलॉजी टू गेट जॉब डन. And it can be any job, as simple as you right now we're communicating and we're using this Zoom as a tool to communicate to each other. कल को कोई और आपने काम करना है, उसके लिए आपने टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करनी है. हाउ डू यू कोलैबोरेट. देयर आर सो मेनी टूल्स वर्क प्लेस के अंदर जहाँ कोलैबोरेशन जिनको टूल कहते हैं. So, उन कोलैबोरेशन टूल में Slack है, Jira है, there are so many tools. How do you collaborate and get creative ideas from so many other people? So it's again more of picking up why is like there can be many whys. For me, how I see why we should be investing in digital skills for our youth and for future is that we can make them all very productive, and we can include them in the economic revival of this country. And this is that significant for me. It's not just कि आप small scale के ऊपर छोटे मोटे काम कर रहे हैं. It can actually transform our economy and our economic productivity. थैंक यू सो मच. अच्छा भी हम आपकी तरफ आएंगे. हम लोग अक्सर इस चीज को डिस्कस भी करते रहते हैं कि रक्षंदा ने, ताहिरा ने बड़ी अच्छी तरह डिफाइन किया कि डिजिटल स्किल्स हैं क्या, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है. और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से अब पूरे मल्टी डेकेड्स गुजारे हैं कि अब ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, चीज़ें चेंज हो गई हैं. इफेक्ट है, कोविड ने बड़ा सिखाया हमको बहुत सारी चीज़ें. अगर मैं सोचता हूँ 10 साल या 15 साल पहले, तो मेरे ख्याल में मेरे ट्रैवल आधे से भी कम होते जितने मैंने किए. मेरे 2-2.5 साल थे जिनमें मैंने कोई 485 इंटरनेशनल ट्रैवल किए थे. अब मैं आज सोचता हूँ कि आज का दौर होता तो मैं भी वो 485 की बजाय जो 60-70 होते मैक्सिमम. अच्छा टाइम गुजारा हमने. तो आपकी तरफ मैं आता हूँ कि इसकी डिजिटल स्किल्स और उसकी रिक्वायरमेंट और एसेंशियल फॉर जॉब मार्केट, इसके ऊपर आप प्लीज गाइड कीजिए. जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. हमारे दोनों स्पीकर्स ने बहुत अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया है इम्पोर्टेंस को भी, और एक लैंडस्केप को भी उन्होंने बयान किया है. मुझे तो यूँ लगता है, अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो ये वेबिनार हम तो बहुत ही लेट कर रहे हैं, क्योंकि जितनी अर्जेंसी ऑफ द नीड ऑफ द डिजिटल स्किल्स है, तो शायद हमें हर रोज़ इस पर बात करने की ज़रूरत है. और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये एक यूनेस्को की रिपोर्ट है जिसमें दे से कि 90% ऑफ यूथ इन लो इनकम कंट्रीज डू नॉट पोजेस द रिक्वायर्ड डिजिटल स्किल्स फॉर द जॉब मार्केट. और अनफॉर्चुनेटली वी आर आल्सो पार्ट ऑफ लो इनकम कंट्रीज. अब ये एक ऐसी रिपोर्ट है कि जिसको देख के तो आप खुद सोचें कि हम कितना पीछे हैं. इट डजेंट मीन कि हमारा हर नौजवान जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है ही या शी लैक्स इन डिजिटल स्किल्स, बट मोस्टली लोगों की बात हो रही है. ठीक है. दूसरा हमारा मसला ये है कि हम जब व्हेन वी यूज दिस टर्म डिजिटल स्किल्स, तो बाज़ लोग इसको हार्ड कोर IT स्किल्स की बात समझते हैं. हम वो डिस्कस नहीं कर रहे. हम उन डिजिटल स्किल्स की बात कर रहे हैं जो रिगार्डलेस ऑफ द इंडस्ट्री एंड सेक्टर एवरी पर्सन नीड्स. क्योंकि अब कोई ऐसा जॉब नहीं रहा
कि जहां आपको डिजिटल स्किल की जरूरत ना हो, क्योंकि कोई राइट जब व्हेन यू एंटर इन ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑफिस में जाते हैं तो अटेंडेंस भी डिजिटली मार्क हो रही है, तो आपको वहां से सिलसिला शुरू होता है। फिर आप पहले बड़ा हमने देखा लोग खुश होते हैं, जी आई नो हाउ टू यूज लैपटॉप और कंप्यूटर। अब ये कोई स्किल नहीं रही, because this is understood that every person who are going for the entrepreneurship venture or for the job, तो ये चीज अंडरस्टूड। ऐसे ही है कि जैसे हम ये कहें कि जी किसी ग्रेजुएट ने मैटर किया है कि नहीं किया, तो भाई ये कोई डिस्कशन वाली बात है, आप आगे चल ही नहीं सकते। तो इसलिए पहले तो इस पे क्लियर हमें होना चाहिए कि हम दुनिया के किस इरा में रह रहे हैं। अब इसी तरह मैं एक और रिपोर्ट देख रहा था, इट इज़ बाय द नेशनल स्किल्स कोलिशन। वो कहते हैं कि 92% ऑफ द जॉब्स बाय 2030 विल रिक्वायर द डिजिटल स्किल्स। अब 92%, गोया द ट्रेडिशनल जॉब्स हैव बीन एलिमिनेटेड। जैसे अभी रेफरेंस दिया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट का कि 85 मिलियन जॉब्स खत्म हो रहे हैं, एंड द नेक्स्ट रिपोर्ट सेज बाय द सेम फोरम कि 97 मिलियन आर न्यू जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, वेयर यू नीड टू हैव डिजिटल स्किल्स। सो एक तरफ ये परेशानी की बात है कि जॉब्स खत्म हो रहे हैं, एंड देयर इज अ होप फॉर न्यू जॉब्स। बात यह है कि आप कहाँ खड़े हो, आप अपने आप को इक्विप कर रहे हो कि नहीं। इस वक्त भी मार्केट के अंदर बैठे हुए हमें पता है कि सो मैनी मिड लेवल एंड मिड एज एम्प्लॉइज आर फेसिंग वेरी क्रूशियल चैलेंज, कि वो उनकी जो कैपेसिटी है टू compete एट वर्क जॉब्स मार्केट, वो ना होने के बराबर रह गई। और जो लोग एक दफ़ा अपनी जॉब से निकलते हैं उनके लिए री एंट्री मुश्किल हो गई। और ये मैं एक जगह पढ़ भी रहा था कि जो लोग जॉब स्विच करते हैं एंड दोज हु हैव डिजिटल स्किल्स, तो उनके 23% चांसेस ज़्यादा हैं कि दे विल अवेल दी अपॉर्चुनिटी। बल्कि इस पे लिंक्डइन की रिपोर्ट भी एक महीने से गुजरी है जो कहती है कि 30% एप्लीकेशन जिसमें एप्लीकेंट हैज़ अ डिजिटल सम सॉर्ट ऑफ डिजिटल स्किल्स, तो 30% आर मोर चांसेस फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि लिंक्डइन का मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा होते हैं, Yes, sir. Yes, sir. अप टू डेट इनकी चीज़ें होती हैं। अब इसी तरह से आईएलओ की रिपोर्ट आप देखें, वो भी चूंकि डिसेंट जॉब वर्क का भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, तो वो भी ये कह रहे हैं कि जी 40% जॉब्स आर गोइंग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द मार्केट। तो इन दिस इरा अब हम वी आर डिस्कसिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल स्किल्स। अब इन चीज़ों को सामने रखते हुए हमारे यूथ को ये फैसला करना है कि वो किस तरफ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे। मुझे लगता है कि ये फैसला अब ये नहीं कि वो किस तरफ जाएंगे, क्योंकि जॉब मार्केट एंड द इकोनॉमी हैज ऑलरेडी डिसाइडेड कि दे विल वेलकम ओनली द पीपल विद डिजिटल स्किल्स। अब ये फैसला जॉब करने वाले या एम्प्लॉयर ने नहीं करना, या ये एंटरप्रेन्योर ने, द पीपल हु आर गोइंग फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर्स, दे मस्ट रिमेंबर कि जब तक वो डिजिटलाइज अपने बिजनेस को नहीं करते, वो छोटा हो या बड़ा, वो ट्रैक नहीं कर सकते अपनी इन्वेंट्री को, अपने कैश फ्लो को, एंड दे कैन नॉट मैनेज देयर प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट हैविंग डिजिटलाइज्ड ऑल देयर इन्वेंट्रीज एंड देयर कस्टमर बेस। और इसके ऊपर इवन एक जो टेलरिंग का काम भी कर रहा है उसे भी डिजिटलाइजेशन करनी पड़ेगी, एक स्टोर चलाने वाले को भी करनी पड़ेगी, और कोई बेहतर और बड़े पैमाने पर काम करने वालों को भी करनी पड़ेगी। तो ये हमारा एक बैकग्राउंड है, लैंडस्केप है, और उसके अंदर सर्वाइवल के लिए सिर्फ यही मुमकिन है कि आपके पास डिजिटल स्किल्स हों। अब ये कौन कौन सी स्किल्स हैं ये हम आगे बात करेंगे। मैं चाह रहा था कि हमारे लोगों को ये मैसेज क्लियरली चला जाए कि जिस तरह से हवा के बगैर यू कैन नॉट ब्रीथ, you cannot live without breathing. Now you cannot have a entrepreneurship venture or a job without digital skills. Please.
थैंक यू भाई। ऑडियंस में आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मींस के अभी तो हम बहुत ज्यादा डिजिटल स्किल्स की तरफ जा रहे हैं। ये जो एडेड नॉलेज होती है ना, ये आपको हमेशा फायदा देती है। मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस है, तो आई वाज अ लाइक सेक्टर सीएफओ एक बाहर कंपनी में था। तो एक साहब को मैंने पाकिस्तान में मेरे साथ उन्होंने काम किया हुआ था, और वो बाहर आ गए, तो उनको फिर हेल्प करनी थी जॉब के लिए। उनको उनका एक्सेल बहुत कमजोर था। हम फाइनेंस प्रोफेशनल थे, उनका एक्सेल बहुत कमजोर था। उन्होंने बहुत समझाया कि यार इसके ऊपर काम करो। बाहर पाकिस्तान में जैसे भी काम चल रहा था वो थी यहाँ हर इंसान को, चाहे वो आप सीएफओ हो, आप टॉप प्रोफेशनल हो, 8,000 की कंपनीज में मैं टॉप 10 में था, ठीक है, तो आपको ये स्किल्स चाहिए। तो और इवेंचुअली उन साहब ने नहीं उसके ऊपर तवज्जो दी, और मुझे उनको फायर करना पड़ा इस वजह से कि वो काम जो लोग 2 घंटे में करते थे वो 3 दिन में भी नहीं कर पाते थे। तो ये बात है आज से कोई 10-12 साल में भी, इससे भी ज्यादा, ये बात एग्जैक्टली आज से 14 साल पुरानी बात है। तो स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट थी। अब क्या चीज है, हर चीज इसलिए कि आपकी जिनसे इंटरेक्शन हो रही है, आप जो काम कर रहे हैं, चाहे आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर लेवल की है, मैं जानता हूँ, उनको मेरी वाइफ की सर्जरी उन्होंने की थी, वो आजकल डिजिटल स्किल्स के ऊपर काम कर रही है। उनको उन्हें रहना है, आजकल किसी असाइनमेंट को मिली, उन्होंने रहना है। हालांकि उनकी 35 इयर्स एक्सपीरियंस है उनका पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो ऑलमोस्ट समझे 60 या 58 की होंगी, बट शी इज वर्किंग ऑन दैट। तो किसी स्टेज पे भी, और खास तौर पे आप लोग जो हमारी ऑडियंस है आज की, डिजिटल स्किल्स के साथ मार्केट में उतरना, और वैसे मार्केट में उतरना ऐसा ही है जैसे आपने कपड़े पहन के उतरे हैं, ये कपड़े पहने बगैर उतरा है मार्केट में कहने के लिए। चले हम आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू। रक्षादा आपकी तरफ आते हैं। अब हम आप लोगों ने बहुत अच्छा डिफाइन किया डिजिटल स्किल्स को, इसकी जरूरत को। कंटिन्यूअस लर्निंग और सर्टिफिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयबिलिटी ऑप्शंस को बूस्ट करने में। इवन आप एम्प्लॉय हो गए, ठीक है, और उसको इम्प्रूव करने में, सस्टेन करने में किस तरह इसको लेना चाहिए। हमने बात कर ली डिजिटल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करें, सीखना तो जरूरी है, क्या इसके लिए सर्टिफिकेशंस भी इंपॉर्टेंट है, क्या आप साथ साथ लेते जाएं, शॉर्ट कोर्सेज करते जाएं। जैसे अभी एक साहब ने क्वेश्चन के बाद में मैं नोट कर लिया, बाद में पूछूंगा। तो किस तरह इस चीज को हम स्टूडेंट कैसे गाइड करें अपने यूथ को। अच्छा, ऑफ है आप जी प्लीज। आवाज नहीं आ रही आपकी हमें। रक्षित आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। अर्षद साहब अब आ रही, अब आ रही, अब आ रही, ठीक है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। और एग्जाम्पल के लिए कि रक्षित आप या तो म्यूट करके अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम लोग। दरमियान में हल्की सी आवाज आती है, फिर आवाज बंद हो जाती है। I hope now I would be Now, audible. now you are audible. Yes. डिजिटल स्किल्स की हम बात कर रहे थे कि दे आपने रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग की बात की, सर्टिफिकेशन की बात की। अर्शद साहब ने जिस तरह भी कहा कि बिजनेसेस को भी जरूरत होती है। अच्छा, इट्स नॉट जस्ट वन स्किल, एकदम से क्या आप कहें कि ये मैंने आज सीख लिया तो डिजिटल स्किल आ गई। डिजिटल स्किल्स आर अ माइंडसेट। और आजकल एक बड़ा हम बात करते हैं कि यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल सेट, यू नीड टू वर्क ऑन योर कॉम्पिटेंसीज rather than your degrees. सर्टिफिकेशन की इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल है, क्योंकि सर्टिफिकेशन एक नीश एरिया को टारगेट कर रही होती है, बट यू शुड बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स upskilling and reskilling, learning new skills, acquiring new skills. अच्छा, I'll just share an example. आज से कुछ साल पहले आई एम श्योर जो अगर स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया शायद उनकी मेमोरी इतनी रिफ्रेश ना हो, लेकिन आई एम श्योर ताहिरा एंड अर्शद साहब एंड यू कैन एक्फा के रोल्स, जो कैमरे के रोल्स होते थे, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनीज टेक्नोलॉजिकली, वो बहुत एडवांस थी। नोकिया की एक एग्जांपल है, बट इट वाज नॉट जस्ट कि दे वर अनएबल टू कैच अप विद द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो इंडस्ट्री में हो रही थी, एंड नाउ दे आर नो लॉन्गर देयर। नोकिया को एक्वायर कर लिया गया, एंड स्टिल आफ्टर एक्विजिशन भी इट्स नो लॉन्गर जो मार्केट लीडर की पोजीशन थी। इसी तरह अगर हम जब अपने आप को स्टूडेंट्स को या अपने आप को प्रोफेशनल्स मार्केट में एक प्रोडक्ट के तौर पे ला रहे होते हैं, अभी आपने कहा कि आप डिजिटल स्किल्स के साथ आएंगे या विदाउट डिजिटल स्किल्स, जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। सो यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ। सर्टिफिकेशन हेल्प्स यू अ लॉट, एंड लकीली आजकल के दौर में बिकॉज ऑफ द डिजिटल एडवेंट, जो डिजिटल आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बहुत सारी सर्टिफिकेशन की कोई इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं होती है।
जिस तरह while I was doing some research work for this session only podcast के लिए, I came across a very good LinkedIn course digital mindset का, पॉल लियोनकार्डी का था, और फिर उनकी एक डिजिटल माइंडसेट की बुक भी थी. आई वॉज एबल टू डू दैट सर्टिफिकेशन. इट वॉज अ स्मॉल माइक्रो कोर्स, लेकिन मुझे 1.25 घंटे के अंदर, हार्डली 75 मिनट्स के अंदर मैंने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया. इसी तरह कोर्सेरा के ऊपर, इफ यू आर स्टूडेंट्स, यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, कोर्सेरा पे वेरी गुड सर्टिफिकेशन ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड यूजर एक्सपीरियंस एंड एम्प्लॉय एक्सपीरियंस विद AI, क्योंकि आजकल AI एक बज़वर्ड है. And if you apply for scholarship, I have personally applied for more than 15 courses at Coursera, जो मैंने फ्री में $50 की कोर्स की सर्टिफिकेशन होती है, और मैंने जितनी बार भी किया है 100% उसका सक्सेस रेट है. दे हैव ऑलवेज गिवन मी अ फ्री कोर्स अगर मैंने रिक्वेस्ट किया है, दो मैं कभी परचेज भी करती रहती हूँ. सो सर्टिफिकेशन जो आपकी एक स्किल को असेस कर दें, देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज जहाँ से आप प्री सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं. There are some other certifications जो CPD certifications होती हैं, जिसके लिए आपको कुछ पेमेंट भी करनी होती है, बट सर्टिफिकेशन डेफिनेटली एड अ वैल्यू. जिस तरह अक्सर आजकल हम किसी टॉप टियर यूनिवर्सिटी का कहते हैं विद DEI, अक्सर हमने लिखना बंद कर दिया है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज आर प्रेफर्ड. लेकिन अगर आपके पास वो सर्टिफिकेशंस हो, तो आपका जो जॉब मार्केट में इंटरव्यूअर है या एम्प्लॉयर है, उसके लिए आसान होता है कि if you are certified from any reputable site or institute, उसके लिए आसान होता है कि आप पे ट्रस्ट करना. So building the trust, it's very important, but in this digital advent, certification से ज्यादा आपकी actual skill या competence matter करती है. So keep on trying new things, try learning new things. आप different forums पे जाएं, LinkedIn learning, आप कोई भी कोर्स करना है, there are more than 4,000 courses, और उनमें से कोई भी कोर्स आप 24 hours के लिए उसको अनलॉक कर सकते हैं. There are 5 courses per week जो आप अनलॉक कर सकते हैं. So you can learn a lot of new skills. So that's it from my side. तो मेन पॉइंट यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्किल सेट पे आपको अबूर होना चाहिए. सर्टिफिकेशन इज एन एड ऑन, डेफिनेटली इज अ बेनिफिट, बट स्किल सेट अगर आपको आता हो, अब सर्टिफिकेशन ले भी लिया आपने और आपको स्किल सेट नहीं आया, तो कोई फायदा नहीं होता उसका. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी उस स्किल के ऊपर अबूर हासिल हो आपको. उसके बाद डेफिनेटली सर्टिफिकेशन भी वैल्यू ऐड कर जाती हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको काम आना चाहिए, आपको स्किल के ऊपर आना चाहिए. खैर, आपकी तरफ आते हैं. तो इसी टॉपिक में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, और अदरवाइज हम बात करेंगे कि क्या ट्रेंडिंग स्किल्स क्या चल रही हैं आजकल. हम बात करते हैं आजकल आप माशाल्लाह टेली कम्युनिकेशन में हैं, और तो आजकल एक तो इस टॉपिक में मैं जरूर चाहूंगा कि आप भी कुछ वैल्यू ऐड करें, और उसके बाद ये है कि जी हम कौन सी ट्रेंडिंग स्किल्स हैं क्या आजकल. थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन. ने बहुत अच्छा एलैबोरेट किया कि यस, देयर आर सो मेनी गुड टूल्स अवेलेबल इंटरनेशनली. बहुत सारे अच्छे वेल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं. हार्वर्ड के कोर्सेज आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आपके पास यूकेडमी के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, कोर्सेरा के अवेलेबल हैं, लिंक्डइन के अवेलेबल हैं. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू take out time and learn a skill. We recently, when I was working as product design head for my digital products at Telenor, so I had to relearn and upskill myself on a lot of things. IT पढ़े हुए मुझे बहुत अरसा हो गया था, and this was one role again that I took the challenge on. And again, I'm telling you कि organizations कितना out of the way जाती हैं to for having the right skill set. UI UX design एक नया concept था 5 years 6 years back, और उस वक्त बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि एक UI designer क्या होता है और एक UX designer क्या होता है. But then there were few individuals जिनको जो कि अपने आप को upskill कर रहे थे और अपने आप को constantly सीख रहे थे, and they knew the difference कि यार एक graphic designer में और एक UI डिजाइनर और एक UX डिजाइनर में फर्क क्या होता है. और वो सिर्फ इस वजह से सीख रहे थे क्योंकि पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा था ये काम, बट वो इस वजह से सीख रहे थे क्योंकि दे वर लुकिंग एट इंटरनेशनली क्या हो रहा है. और वो इंटरनेशनली कहाँ से पता चल रहा है? इंटरनेशनली आपको ऑफ कोर्स डिजिटल वर्ल्ड से पता चल रहा है कि लोग दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है UI डिजाइन की. अगर आप अपनी एक ऐप डिजाइन करें या कोई भी वेबसाइट डिजाइन करें, व्हाट डज इट मीन टू हैव अ यूजर फ्रेंडली यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर इंटरफेस. कितने क्लिक्स में आपका एक एक्शनेबिलिटी हो जानी चाहिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड अराउंड इट. सो
ये स्किल होना इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप उस स्किल के उस मेयार पे हैं कि जब आप उसके लिए एक सर्टिफिकेशन भी ले लेते हैं, तो दैट्स ऑफ कोर्स चेरी ऑन द टॉप। बट फॉर श्योर द फर्स्ट थिंग इज, क्या आप उस आपके पास वो स्किल सेट है, क्या आप जानते हैं कि वो काम होना कैसे है और उसको एक्चुअली डिफरेंट टूल्स यूज करके वो काम आप डिलीवर कर सकते हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को हमने पूरा रिवैम्प किया, लुकिंग एट के डिजिटल स्किल्स बहुत सारे लोगों के पास हैं, दे हैव स्किल सेट बट दे डोंट हैव यूनिवर्सिटी डिग्रीज। और अगर हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी कहती थी कि जी आपका मिनिमम बैचलर्स होना चाहिए, देर आर very good UI designer, very good UX designer. They are not, they don't have university degree, but they're good designers. They're good coders. So आप सिर्फ इस वजह से उनको नहीं हायर कर पाएंगे कि उन्होंने यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं की हुई है। सो वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्टली दैट यू हैव टू कोप अप विद एंड यू हैव टू रीडू योर इवन रिक्रूटमेंट पॉलिसीज। लेकिन फॉर श्योर आपको उन लोगों के पास वो स्किल सेट है तो आपने उनको हायर किया है, चाहे उनके पास वो यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है। बट अगर सर्टिफिकेशन के पास आप जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स दैट कोई सर्टिफिकेशन जो भी आप ले रहे हैं वो एक इंटरनेशनल कोई ना कोई मिनिमम मेयार सेट हो रहा है जिसके बेसिस के ऊपर आपको एवेल्युएट किया जा रहा है और फिर वो सर्टिफिकेशन दी जा रही है। तो इट डज एड ऑन टू योर क्रेडिबिलिटी, टू योर स्किल सेट क्रेडिबिलिटी। नाउ कमिंग इनटू कि कौन से ट्रेंडिंग डिजिटल स्किल्स हैं। अगेन देयर फ्यू डिजिटल स्किल्स अक्रॉस द बोर्ड। आप किस रोल में है, किस प्रोफेशन में है, आपको आनी चाहिए और आपको सीखना चाहिए। एक तो क्योंकि यूथ हमारी बहुत सारी सुन रही है तो उनके लिए सुबह दोपहर शाम सोशल मीडिया यूज कर रहे होंगे, बट हाउ डू यू इफेक्टिवली यूटिलाइज योर सोशल मीडिया इज ऑल्सो अ स्किल, इज ऑल्सो अ की डिजिटल स्किल। चाहे आप अपना एक पर्सनल ब्रांड डेवलप कर रहे हैं उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे आप अपना कोई नया बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, कोई नया आइडिया लॉन्च कर रहे हैं, चाहे आप उस पर क्राउड सोर्सिंग करना चाहते हैं ऑफ आइडियाज, या अपने वर्क पे कोलैबोरेट करना चाहते हैं विद अदर प्रोफेशनल्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी रोल में आप बैठे हैं सोशल मीडिया को इफेक्टिवली इस्तेमाल कैसे करना है। आपने आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप अपने लिए काम नहीं करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल। अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया सर्च इंजन, सर्च इंजन को समझना, सर्च इंजन काम कैसे करते हैं, हाउ डू यू डू सर्च इंजन मार्केटिंग, हाउ डू यू डू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगेन अक्रॉस द बोर्ड, किसी भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ मार्केटिंग के लोगों को समझना चाहिए या मार्केटियर्स को समझना चाहिए कि सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। अगेन अनदर स्किल जो कि अक्रॉस द बोर्ड आपको पता होना चाहिए, टू अगेन यूज योर सोशल मीडिया इफेक्टिवली एंड डू रन इफेक्टिव सर्चेस फॉर योर सेल्फ। आप क्या सर्च करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी दुनिया है नॉलेज की ऑनलाइन, उस पर अगर आप इफेक्टिवली सर्च नहीं चला सकते, एक बेसिक सर्च नहीं चला सकते, दैट इज इन इटसेल्फ a key very fundamental digital skill कि मैंने सर्च चलानी कैसे, फिल्टर लगाने कैसे हैं, व्हाट आर द कीवर्ड्स जिससे मैं राइट कंटेंट पे राइट चीज़ों पे पहुंच सकूँ। अनदर एरिया विच इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल और हम एज पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत लैक करते हैं। वी आर गुड एट स्टोरी टेलिंग और हर कोई जो है ना अपने अंदर एक अच्छा स्टोरी टेलर जरूर है, बट वी रियली डोंट लुक इनटू डेटा। we don't have data driven approaches, but on the whim काम करने के हम ज्यादा आदी हैं। So हमें especially the youth, we really need to understand कि logical thinking क्या होती है और उस logical thinking में आप data driven approach कैसे लेके आ सकते हैं। डेटा क्या कहता है, डेटा को समझें, डेटा को समझ के डेटा से insights कैसे निकालनी है और उसके बेसिस के ऊपर decision making कैसे करनी है। So data analytics is another वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो कि आप चाहे फाइनेंस प्रोफेशनल है, चाहे आप HR प्रोफेशनल है, चाहे आप मार्केटिंग में है, मतलब किसी भी आप फील्ड में हैं, डॉक्टर है, लॉयर है, जिस भी फील्ड में आप हैं या जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। एंड लास्ट स्किल दैट आई इज फंडामेंटल, अभी मैं एडवांस डिजिटल स्किल्स की बात ही नहीं कर रही, फंडामेंटल स्किल्स की बात कर रही हूँ। लास्ट स्किल दैट आई वुड वांट टू टॉक अबाउट इज ऑटोमेशन। बहुत AI और
जनरेटिव एआई और प्रिडिक्टिव, बहुत सारे की बज वर्ड्स हैं, बट अभी मैं उस एडवांस पे नहीं जाना चाह रही। मैं अभी फंडामेंटल ऑटोमेशन की बात कर रही हूँ, दैट हाँ, और किसी भी फील्ड के अंदर अगेन आप हो, यू हैव टू लुक इनटू द अपॉर्चुनिटीज कि यार ये जो काम हो रहा है ये कैसे डिजिटाइज हो सकता है, क्या ये काम डिजिटाइज हो सकता है, ऑटोमेट हो सकता है, क्या कहाँ से एफिशिएंसी लेके आ सकते हैं हम किसी प्रोसेस के अंदर, उसकी एंड टू एंड टैट बेहतर करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए, ह्यूमन एरर को कम करने के लिए। सो स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट टास्क यू कैन पिक एंड लुक इनटू द अपॉर्चुनिटीज, किसको ऑटोमेट किया कैसे किया जा सकता है। और खुद से सीखना, ये सिर्फ आईटी का काम नहीं है, कुछ बेसिक कोडिंग आप खुद कर सके, खुद कुछ चीजों को, मतलब और कुछ नहीं तो एक्सेल ही लेके चीजों को ऑटोमेट कर दें, बहुत सारे आपके काम जो है वो आसान हो जाएंगे। सो दीज आर लाइक फ्यू फंडामेंटल स्किल्स जो कि मेरे ख्याल से सोशल मीडिया, जस्ट टू समराइज, सोशल मीडिया इफेक्टिवली कैसे इस्तेमाल करना है, सर्च इंजन मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे है ताकि आप अपनी सर्चेस, ऑनलाइन सर्चेस को बेहतर कर सकें, डाटा एनालिटिक्स एंड लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज की ऑटोमेशन कैसे हो सकती है किसी भी प्रोसेस की, किसी भी प्रोसेस फ्लो की। थैंक यू सो मच तायरा, थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, सबसे इंपॉर्टेंट है जो दोनों हमारे स्पीकर्स ने बात की, खासतौर पर सर्टिफिकेशंस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि सर्टिफिकेशंस को अर्न करना है। उन सर्टिफिकेशंस की कोई रिकमेंड नहीं कर रहा जो आपको इतने पैसे दो और सर्टिफिकेट ले लो, ऑनलाइन भरा हुआ है इस चीज से। जब भी कोई चीजें आती हैं तो उसका नेगेटिव इस्तेमाल भी होता है, तो एक नेगेटिव इस्तेमाल है जो लोग कर रहे हैं दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए कि इतने पैसे दो, $50 में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपको स्किल नहीं आएगी ना तो सर्टिफिकेट अर्न करें, सीखना जरूरी है। वो $50 के आप 500 या $5000 भी लगा लें, अगर आपको काम नहीं आता, कोई उसकी तस्वीर दिखा के आपको कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप काम में आपने आपने अर्न करना है, आपने लर्न करना है, उस सर्टिफिकेट को अर्न करना है, आप लर्न करें, आपकी स्किल सेट इंप्रूव होना चाहिए, उसके बगैर कोई चीज नहीं है। एक दो क्वेश्चन है, रक्षन आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक एक का जवाब मैं खुद भी दे दूं अगर आप भी ऐड करना चाहें। सर, देयर आर नो जॉब ऑफ कंटेंट राइटिंग, प्लीज रिप्लाई। राफेली साहब, कंटेंट राइटिंग कहते हैं किसको है? पहली बात, हम डिजिटल स्किल्स की बात करें, जो कंटेंट राइटिंग आजकल चल रही है ना, चैट जीपीटी पे डाला और उसको कर लिया तो भाई जो आपको पैसे देगा वो खुद कर लेगा ना। चैट जीपीटी पेड अकाउंट ही $15 का मिल जाता है महीने का, और दूसरी बात उससे आप 50 कंटेंट कर सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग रियल है किधर? आज भी कंटेंट राइटिंग है। मैं आपको बताऊं, मैं कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टर हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्ट कंटेंट नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ड्राफ्ट करता हूँ, और बिजनेस बहुत आता है, मतलब वकील ये काम करते हैं, आई एम फाइनेंस प्रोफेशनल विद पीएचडी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो मैं भी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करता हूँ, मैंने प्रोफेशनली छोड़ दिया है, जान पहचान, तो आता है काम। बट आप किस कंटेंट राइटिंग की बात कर रहे हैं? जो आजकल मैंने देखा था कंटेंट राइटिंग को इधर उधर से छाप के गूगल से करके उसे कोशिश करें, तो वो कंटेंट राइटिंग का काम खत्म हो चुका है, फ्री चैट जीपीटी ने उसको रिप्लेस कर दिया है। भाई जब मैं आज से कोई 10-15 साल बात है, हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट्स को हमें रिव्यू करना होता था ना, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो हम एक एक करके बैठ के पढ़ के करते थे। फिर पता चला एक सॉफ्टवेयर आया, और वो सॉफ्टवेयर उस वक्त था $60 अ मंथ का, वो बहुत अच्छी खासी अमाउंट थी जो आपको ऑटोमेटिकली दे देता। अब जो चैट जीपीटी है ना, उसमें 2 फाइलें लोड करो, वो आपको एक एक कंपैरिजन बना के दे देता है। तो किन कंटेंट राइटिंग की बात करें? कोई काम के काम करें, कंटेंट राइटिंग के चक्कर में छोड़ दें, ठीक है, बेहतर काम करें। तला वसी साहब, रक्षाद आपके से क्वेश्चन कर रहा हूँ, व्हाट डिजिटल स्किल्स शुड फ्रेश ग्रेजुएट्स हैविंग बिजनेस बैकग्राउंड शुड फोकस ऑन टू स्टैंड आउट इन जॉब मार्केट? ये बिजनेस ग्रेजुएट हैं, ये बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ये चाहते हैं कि वो स्टैंड आउट जॉब मार्केट में कौन सी स्किल्स के साथ उतरें ताकि उनको एच हो। रक्षाद वॉइस 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 आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं पता क्या इशू है। हाँ, अब आ रही है। The question is हाँ। very interesting क्योंकि डिजिटल स्किल्स की जब हम बात करते हैं बड़ा कंफ्यूजिंग सा टर्म लगता है डिजिटल स्किल, और अगर हम सर्च करना शुरू करें तो आपकी हार्ड कोर प्रोग्रामिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग और वो सारी स्किल्स आ जाती हैं। मगर ये सवाल आई एम श्योर कि जिन्होंने ताहिरा का प्रीवियस आंसर सुना है, तो द वेरी बेसिक एंड वेरी रेलेवेंट एंड प्रैग्मेटिक स्किल्स, मतलब सोशल मीडिया को आपको यूज करना आना चाहिए, बिकॉज योर इंटायर प्रेजेंस, पहले हम कहते थे नेटवर्किंग करें, आज भी इन पर्सन नेटवर्किंग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, मगर डिजिटल नेटवर्किंग आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस अक्सर जिस तरह अगर आपने किसी ने अपना सोशल सेलिंग इंडेक्स चेक किया और लिंक्डइन पे, वो आपको बताता है कि लिंक्डइन आपकी सोशल वर्थ कहाँ पे प्लेस कर रहा है।
So you should know how to socially sell yourself. अपने आप को digitally present किस तरह करें, digitally sell किस तरह करें. I'll just share an example. I as an HR head in my previous organization was hiring someone. तो बंदा बिल्कुल फाइनलाइज हो गया था. There were 2 candidates who were equally qualified. तो अब समझ नहीं आ रही थी both equal offer, first offer किसको दें. हमने कहा उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर लेते हैं. एक का जो है वो कंटेंट पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड था. अदर वन हैड अ वेरी रीजनेबल प्रोफाइल, बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं थे. बट वी ऑप्ट फॉर वन जिसकी शायद सोशल मीडिया प्रेजेंस थोड़ी कम थी. So how we present ourselves on social media or digitally plays a very important role. So if you are a student, make sure कि आपकी जो digital presence है वो एक professional presence हो. जिस तरह हम कहते हैं कि प्रोफेशनल आपका एक ब्रांड इमेज होता है आपकी किसी भी ब्रांड का. तो ये जिस तरह अगर आज के दौर में हम बात करें, इट माइट बी लिटिल कंट्रोवर्शियल, लेकिन क्या आज से 5 साल पहले पेप्सी ने या कोका कोला ने सोचा था कि उनका या मैकडोनल्ड्स ने कि उनका इस तरह से बायकॉट होगा. नो वन ये आपकी सोच या वहमो गुमान में नहीं था, मगर हो गया. सो यू हैव टू बी रेडी फॉर द अनइमेजिनेबल, अनप्रिडिक्टेबल. तो आप जब अपनी सोशल प्रेजेंस की बात करते हैं, बी वेरी प्रोफेशनल अपने डिजिटल अपने स्किल्स पे. अच्छा, जो आपकी स्किल्स हैं, जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है. आपके जो बैजेस होते हैं लिंक्डइन पे, आपकी सर्टिफिकेशंस होती हैं, उनको एक्वायर करें, उनको डिस्प्ले करें. सो इफ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट हु इज एंटरिंग द जॉब मार्केट, सबसे आसान है कि आप अपने जो स्किल्स आपने एक्वायर की हैं उससे रिलेटेड कंटेंट डालें. दैट विल आल्सो शो कि आपकी राइटिंग कैसी है. और इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि ये जिस तरह भी आपने कहा कंटेंट जनरेशन इज डेड. तो आई सेकंड यू ऑन दिस. अंदाजा हो जाता है जब एक बंदा खुद लिख रहा होता है और वो एक एआई के टूल से लिख रहा होता है, कोई चीज जनरेट हो रही होती है. दिस इज वन थिंग. देन यू शुड आल्सो हैव डिजिटल एथिक्स आल्सो आपके पास होने चाहिए कि मैं सोशल मीडिया पे क्या डाल रहा हूँ, क्या नहीं डाल रहा. और एम आई बुलिंग समवन, क्योंकि सोशल मीडिया के या डिजिटल फ्रेम के नेटवर्क के पीछे छुप के कुछ भी कहना बड़ा आसान होता है बनिस्बत किसी के सामने. तो दोज आर द थिंग्स कि आप डिजिटल अपनी प्रेजेंस को एक प्रोफेशनल प्रेजेंस के तौर पर रखें, अपने आप को उस तरह प्रेजेंट करें जिस तरह हम कहते हैं ना कि आपको वेल ड्रेस होना चाहिए. तो आपका सोशल मीडिया का या आपका डिजिटल जो पर्सोना है वो भी एक बहुत प्रोफेशनल तौर पर आपको प्रेजेंट करना है. ऑल्सो वन थिंग, अगर हम आज से 5 साल बाद की बात करें, या हमने 2-3 हम आई थिंक हम तीनों स्पीकर्स ने ये चीज मेंशन की है, फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट का तस्करा की है. तो उसकी अगर आप बात करें तो उसमें यह है कि इफ यू हैव रिटन इन फ्यूचर लीडरशिप विल बी एज इम्पोर्टेंट एज इट्स टुडे. लेकिन ये होगा वो सक्सेसफुल लीडर होगा हु कैन यूज एआई, हु कैन यूज डिजिटल स्किल्स. तो दैट इज द थिंग कि आप जो भी चीज करें आपको फंडामेंटल उसके स्ट्रांग होने चाहिए. अगर आप इफ यू आर इनटू मार्केटिंग फील्ड, तो ऐसा नहीं है कि आप कहें मैं डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग पे जाऊंगा. आपको पहले मार्केटिंग की बेसिक समझनी है, उसके बाद यू कैन ऑगमेंट इट विद टेक्नोलॉजी एंड अदर डिजिटल स्किल्स. तो फंडामेंटली अपनी फंडामेंटल स्किल्स को स्ट्रांग करें. सेकेंड, आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस को एक प्रोफेशनल प्रेजेंस में करें. एंड थर्ड, आप जिस तरह हम हमेशा कहते हैं आपकी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं या डिजिटल स्किल्स हैं, डिजिटल पर्सोना है, उसको पॉलिश करें. दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस इन एवरी एरा. और स्पेशली क्योंकि आजकल का दौर है उसमें डिजिटल उस पर कर रहे हैं. जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स थी उनको अब आप डिजिटल सॉफ्ट स्किल्स में करें. जो आपकी हार्ड स्किल्स थी उनको डिजिटल हार्ड स्किल्स में करें. जो आपकी ट्रांसफरेबल स्किल्स थी उनको डिजिटल ट्रांसफरेबल स्किल्स में करें. और इन प्रेजेंट एरा किसी भी स्किल के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करना इज वेरी सिंपल. अभी आपने कहा चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, आपके पास क्लॉडी है. यू कैन यूज एनी प्लेटफॉर्म टू नो कि मेरे एरिया में कौन सी स्किल सबसे ज्यादा रेलिवेंट है. एंड देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट. उस स्किल को जिस तरह आपने कहा अर्न करें, स्किल को पॉलिश करें और फिर उसको शोकेस भी करें. इफ यू हैव एक्वायर्ड अ स्किल, उसको लिंक्डइन पे या अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उसकी कुछ ना कुछ अपडेट जरूर डालें सो पीपल वुड नो. क्योंकि जंगल में मोर ना जाए किसने देखा. अगर आपके पास एक स्किल है उसका प्रूफ होना चाहिए. और एज ए फ्रेश प्रोफेशनल आपके पास हो सकता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ना हो, लेकिन आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं they are your display center, your showcase. So that's it from my side. अगर कोई और हो.
सो मच। Very बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया। दायरा मैं आपकी तरफ आता हूँ। इन्हीं तलहा वसी साहब का एक क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, हाउ कैन आई ट्रांजिशन फ्रॉम लर्निंग डिजिटल स्किल्स टू अप्लाइंग देम इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। तो मैं इसको, मेरे ख्याल में इस तरह इसको मैं रीफ्रेज अगर करूं कि वो सीख कर आ गए, बट वो उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसकी एप्लीकेशन कैसे समझ आएगी। So, तलहा, what you can do is, of course, अगर आपके पास जॉब नहीं है और रियल लाइफ सिनेरियोज नहीं है, so you can still, there are again tools available which can create dummy uh, dummy conditions for you to apply those skill set. You can pick up any free projects शुरू में उन स्किल्स को अप्लाई करने के लिए और उनको ट्राई आउट करने के लिए, उनको फर्दर पॉलिश करने के लिए। तो यू कैन रैंडमली गो अराउंड एंड लुक इनटू, मतलब से आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्किल्स सीखी है, यू कैन गो एंड आस्क एनी ऑफ योर फ्रेंड और समवन। कोई आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं कि कोई ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, उनको आप कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। यू ऑफर योर सर्विसेज एंड इनिशियली शायद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करनी पड़े, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट एंड यू बिल्ड दोज लर्निंग एक्सपीरियंसेस जिसको आपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया उन स्किल्स को, दैट विल हेल्प यू बिल्ड योर स्किल सेट एंड दैट विल हेल्प यू बिल्ड योर प्रोफाइल फर्दर। इसी तरीके से अप्लाई करने के लिए देर आर सो मेनी, what do you call them, online portals available, freelancing portal available, so you can start small even there. उधर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। अपवर्क है, देयर आर अदर फ्रीलांसिंग साइट्स। अगर आपने कोई डिजिटल स्किल सीखी है, यू कैन जस्ट गो एंड लुक इनटू कि छोटे स्मॉल स्केल के ऊपर वहां पे आप प्रोजेक्ट्स पकड़ सकते हैं जिनको आप इन अपनी स्किल्स को अप्लाई कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप वहां पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। एज यू डिलीवर ऑन दोज प्रोजेक्ट्स आपकी रैंकिंग होती है और आपका कस्टमर या जो भी आपका क्लाइंट है वो आपको रैंक कर रहा होता है वहां पे। So it's just that start smaller. जो होता है ना, कंट्रोल्ड रिस्क लें, उसको इम्प्लीमेंट करें और उसे सीखें और उसको रीपिवट करेंगे। अच्छा, मैंने इस यहाँ पे हेल्प ऑफर की थी, ये मैं कर पाया, ये मैं नहीं कर पाया, और इसको करने के लिए और सीखेंगे। अच्छा यार, ये जो मैं नहीं कर पाया, इसको हाउ डू आई क्रैक द कोड। जाके लोगों से बात करें, जाके सीनियर से बात करें जो और प्रोफेशनल्स में काम कर रहे हैं। डिजिटल स्किल्स और सबसे मजे की बात ये कि देयर सो मेनी फोरम्स ऑफ पर्टिकुलर स्किल सेट। यूआई डिजाइनर्स के अपने फोरम्स हैं, so if you are unable or you're stuck somewhere, you can just go to those forums and put your problem statement there, and there would be so many people out there to help you with how to crack the code. Even if you can go and put it कि जी अच्छा मैंने सीख लिया लेकिन अब I don't know how do I implement, they might offer you projects as well, even paid projects कि अच्छा जी आप अपनी skills को इस पे implement करें। डाटा एनालिटिक्स सीखिए, पिक सम एनी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को उठा लें और उधर से इकोनॉमिक सर्वे का डाटा अभी अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान और स्टेटिस्टिक डिवीजन ऑफ पाकिस्तान जो है, या पाकिस्तान में जो सेंसस है जिसको हमने पिछले अभी लास्ट सेंसस कराया है, वो कहा गया था कि डिजिटाइज सेंसस है, लेकिन जब आप उसका डाटा देखते हैं वो अभी तक डिजिटाइज नहीं है। तो अगर आपने एनालिटिक्स की स्किल सीखनी है और ये सीखा है कि आप उनसे डिफरेंट इन्फोग्राफिक्स कैसे बना सकते हैं, तो just pick up that data and make those infographics, put it on all your social media pages, and there would be people, there would be an audience who can give you feedback. How do you turn data into some insights? और क्या वो insights useful हो सकती हैं, और वो insights अगर आप किसी visual format में डाल रहे हैं तो visual format effective है या नहीं है, you can get a lot of feedback. अभी recently someone contacted me और उसको मैंने कहा अच्छा यार, ये जो लास्ट टैक्स इनकम टैक्स रिविजन आई है पिछले बजट के अंदर, कैन यू मेक सम एनालिसिस के एम्प्लॉइज की सैलरी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, एंड ही क्रिएटेड ऑल दिस ग्राफ्स बेस्ड ऑन दैट डेटा, और वो उसने अपने लिंक्डइन के ऊपर डाली, उसने मुझे भेजी, उसने और मैंने बहुत सारे और प्रोफेशनल्स को फॉरवर्ड की कि यार गिव दिस सम फीडबैक टू दिस गाय हु हैव लर्नड अ स्किल एंड ही इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट। सो इट्स जस्ट दैट
pick up small projects and start implementing that. There are enough opportunities available if you start using your brain, how to implement those skills. थैंक यू तारा, थैंक यू सो मच। तारा देखें, जो दिखता है वो दिखता है, याद रखिएगा, अपने आप को पोर्ट्रे करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि मिसाल के तौर पर, राइट, में पहली बात ये कि अगर जो आपका कहना था, अगर आप ये मतलब था आपका कि आप उसको प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन या किसको स्टैंड आउट करना है, तो याद रखिएगा उन कामों को, उन स्किल्स को प्रायोरिटाइज करें जिससे आपका काम आसान हो। जब आपने स्टैंडर्ड, मैं जब छोटा था ना बचपन में, तो हमारे वालिद कहते थे कि अगर तुमने दुनिया में आगे चलना है, कामयाब होना ये चाहते हो, तो 10 कदम आगे चलना सीखो। तो उसके डेफिनेशन आजकल के दौर में है कि आपको स्किल्स आने चाहिए। तो आप उन कामों में जो भी आपका लाइन है, जो भी उसमें है, तो वो स्किल्स को प्रायोरिटाइज करें सीखने के लिए, जो आपके काम को आसान करेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक काम है जो आप ज्यादा स्विफ्टली, ज्यादा टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कर सकेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर बढ़ जाएगा, आप ज्यादा स्टैंड आउट करेंगे। तो ये बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है। रक्षाता एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, खैर बच्ची हैं, सादिया एफएससी के स्टूडेंट हैं। इनका कहना है कि जी, एक क्वेश्चन तो क्या है बेचारों, एक वो फरियाद है, स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स इन मेनी कॉलेजेस आर स्टिल स्टक फिलिंग रजिस्टर्ड एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स मैनुअली विद नो एक्सेस टू स्टैटिस्टिक्स सॉफ्टवेयर. This outdated approach leaves them unprepared for modern tools and delays their learning until master's program, putting them at disadvantage in the fast-paced digital job market. और ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, एफएससी के स्टूडेंट है, इतनी करेज उन्होंने क्वेश्चन किया, तो थोड़ा सा रक्षण इसको आप कीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स का सॉफ्टवेयर तो मैंने भी एक SPSS यूज किया था और एक और किया था, लेकिन काफी समय। This is something I can get back to you, her. आप इनका registered इनका email ID दे दीजिएगा, या I can check with statisticians के कौन से softwares use हो रहे हैं. I'll provide a list, but honestly speaking, right now I don't have any list. SPSS का मुझे याद है, nothing else at the moment. सादिया, आप अपने बल पे के पेज पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको रक्षंदा से पूछ के हम आपको रिप्लाई कर देंगे। और एक चीज, इस चीज को मैं उस वक्त हम बात कर रहे थे, जो भी ताहिरा बात कर रही थी, कि स्किल्स, और अगर आपने आपको पोर्ट्रे करना है और अभी आपके पास जॉब नहीं है, हमारा एक मैगजीन है इंस्पायरिंग यूथ के नाम से, अपने बल पे एक यूथ के लिए मैगजीन निकालता है, एक साल में 6 वॉल्यूम्स निकालते हैं। आपको ऐसा, अगर कोई ऐसी वाकतन आपके पास कोई यूनिक चीज है, आप कुछ लिखें, आप हमारी टीम को भेजें, हम उसको पब्लिश करेंगे। अगर वाकई यूनिक हुआ, वो आपका अपना कंटेंट हुआ, ठीक है, और प्रेगनेंसी नहीं हुआ, तो हम उसको पब्लिश करेंगे, आप ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर के साथ पब्लिश होगा। हमारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको भी तो अच्छा लगेगा और आपकी चीज मार्केटिंग होगी। जस्ट टू, अच्छा, समन एक क्वेश्चन पूछ रही हैं, नहीं बल्कि यासिर साहब का क्वेश्चन पहले पूछता हूँ, समन का क्वेश्चन। ताहिर आपसे बात कर, यासिर साहब कहते हैं जी, इन करंट टाइम्स लिंक्डइन कीप्स चेंजिंग इट्स एल्गोरिथम, हाउ कैन वी कीप अब्रेस्ट ऑफ दीज changes and be on top of the game, whether it's a personal branding or finding the matching job? देखिए, कोई भी सोशल मीडिया का टूल होता है ना, लिंक्डइन होगा, वो जो उनके एल्गोरिथम है वो चेंज होते रहते हैं। चलिए ताहिर, अगर आप इनको गाइड कर सकें कि कैसे ये टॉप पर है। जी, अभी मैंने जब स्टार्ट किया था, उसमें मैंने कहा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था, उसको टाइम लगा था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में टाइम लगा था। जो डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है, इस पे इसकी स्पीड ऐसी है कि आपने एक स्किल आज सीखी और आपने कहा जी मैंने सब सीख लिया है, अब बस मैं चुप करके बैठ के अब इस स्किल को इम्प्लीमेंट करूंगा, दैट इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, कॉन्स्टेंटली नए अल्गोरिदम्स आ रहे हैं, तो आपको भी अपने आप को कॉन्स्टेंटली, जिस तरह पहले होता था ना, सिर्फ डॉक्टर्स और लॉयर्स कॉन्स्टेंटली पढ़ते थे, तो अब डिजिटल स्किल्स वालों को कॉन्स्टेंटली अपने आप को अप टू डेट रखना है। नॉट ओनली डिजिटल स्किल्स, एज आई सेड, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप HR में हैं, आप IT में हैं, आप टेक्नोलॉजी में हैं, आप फाइनेंस में हैं, you have to keep yourself constantly updated with the digital tools in your respective field. अभी जो FSC की स्टूडेंट थी, उन्होंने बात की कि हमें FSC में बेटा, आपको अगर स्कूल वाले जो है वो या कॉलेज वाले नहीं यूज करने देते, आप खुद से कोई भी स्टेटिस्टिक्स गूगल पे लिखे, आपको वैसे हमारे ऑफिस में हम लोग, या मैं जो सबसे ज्यादा पावर BI यूज करती हूँ, SPSS भी किसी जमाने में मैंने यूज किया है, आप एक्सेल भी यूज कर सकती हैं, मैटलैब है, टैबलू है, पाइथन अगर आप सीख सकती हैं, पाइथन अगेन इज अ कोडिंग लैंग्वेज दैट कैन हेल्प यू विद सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स
सो अगेन बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। अगर आपको आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज वो टूल्स नहीं पढ़ा रहा तो खुद सीखें वो टूल अपने इस्तेमाल कैसे करना है, और जाके अपनी क्लास को भी सिखाएं और अपने टीचर को भी सिखाएंगे, ये देखिए जी मैंने इस ये अपना सारा डेटा इस टूल में डाला था और ये रिजल्ट निकल के आए हैं। दैट इज व्हाट द एज इज। और हो सकता है कुछ लोग एम्ब्रेस करें और कुछ लोग कहेंगे जी नहीं ये हमें सिखाने के लिए आ गई हैं आप। दैट इज परफेक्टली फाइन, एटलीस्ट यू हैव लर्न समथिंग। तो डोंट क्रिएट दोज बाउंड्रीज विच आर आउट देयर। अपने लिए खुद वो बाउंड्रीज जो है वो ब्रेक करें, वो बैरियर्स ब्रेक करें। स्कूल और कॉलेज अगर ने नहीं भी कहा, खुद सीखेंगे वो नया टूल कौन सा है, जिस स्टेटिस्टिक्स के कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं जिसको आप यूज कर सकती हैं, एंड यू कैन जस्ट डू योर वर्क देयर एंड इट विल रियली हेल्प यू। तो आपकी तरफ आता हूँ। समन एक क्वेश्चन कर रही हैं, आई हैव अ बैकग्राउंड इन माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लानिंग टू मूव अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, काइंडली सजेस्ट विच कोर्स शुड आई लर्न दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अब्रॉड। आई हैव फॉलोइंग कोर्सेज: AI, data analysis using Python, cyber security, Google UX design, JavaScript, graphic design। ये तो उनके अपने इंटरेस्ट के ऊपर है, बट मैं अगर हूँगा तो मैं तो कहूंगा कि आप बताएं, रशिदा बेहतर गाइड कर सकेंगे। रशिदा आवाज नहीं आ रही आपकी, नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। हो सकते हैं, but अब ठीक है, अब आ रही है। रशिदा प्लीज रिपीट कीजिएगा, अब आवाज आ रही है आपकी जी। a person can have multiple interests, लेकिन बेहतर है कि आप फोकस्ड रहें। आप मतलब हर चीज, मतलब आपके माशाल्लाह जो ऑप्शंस आपने दिए हैं, दे आर गोइंग एवरीवेयर। हो सकता है यू आर इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग, मगर अपनी एक नीश, एक स्पेशलाइजेशन को डेवलप करें। अगर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजी आपने पढ़ा है एंड यू वांट टू एक्चुअली हैव योर कैरियर इन दैट फील्ड, तो फिर आई वुड रिकमेंड कि आप माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड करें। जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं या डेटा स्किल्स होती हैं या इवन डिजिटल लिटरेसी की हम बात करें, दे आर एड ऑन्स। डिजिटल लिटरेसी आपको हर करियर में चाहिए, हर प्रोफेशन में चाहिए। एबिलिटी टू रीड, एनालाइज, इंटरप्रेट डेटा, डेटा विजुअलाइजेशन, वो आपको हर स्किल सेट में चाहिए। जिस तरह अगर आपने एक अकाउंटेंट की एग्जांपल की दी थी 10-15 years बैक, उस वक्त एक्सेल वाज ओनली फॉर द अकाउंटेंट्स या फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए। आजकल एक्सेल इज समथिंग विच एवरीवन यूजेस। तो आपके जितनी भी डिजिटल स्किल्स हैं, डिजिटल लिटरेसी है, उससे आप अपने आप को इक्विप करें। और आप देखें कि आपकी एनवायरनमेंट में, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में कैरियर बना रही हैं, जस्ट गूगल, आपके पास गूगल है, आपके पास चैट जीपीटी है, यू हैव सो मेनी टूल्स जिनसे आप फर्दर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकती हैं। मगर स्टिक टू योर मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आधा तीतर आधा बतेर जो है ना, वो कोई पसंद नहीं करता। स्पेशली आजकल जहां हमारी बहुत सारी जॉब्स जो है वो AI, मतलब अभी हमने कहा था देयर विल बी सो मेनी जॉब्स जो एलिमिनेट हो जाएंगी। सो यू हैव टू बी अ स्पेशलिस्ट और अ जर्नलिस्ट एट अ लॉट ऑफ वाइड मायरेड ऑफ थिंग्स, मगर सारी सिमिलर डोमेन की हों। अगर किसी के पास एक जबरदस्त IT प्रोफेशनल होगा, तो वो, अगर आपने जावा स्किल का या पाइथन का एक कोर्स किया हुआ है, विल प्रेफर दैट पर्सन ओवर यू। तो अपने एक एरिया को, एक नीश को, एक स्पेशलाइजेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, उससे रेलेवेंट और रिलेटेड स्किल्स से अपने आप को इक्विप करते जाएं। कि आप कहें कि आप एक लार्ज डोमेन को, आपकी ब्रॉड एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज एक फील्ड में जरूर होनी चाहिए, ताकि आपको इजीली कोई रिप्लेस ना कर सके। सो स्टिक टू द एरिया जहां पे आपका थैंक यू मेन एरिया ऑफ निश है। जी, थैंक यू सो मच रक्षिता। आखिरी क्वेश्चन है फरहान साहब का, इसका आधा जवाब मैं दूंगा इसलिए कि इज अ फाइनेंस ग्रेजुएट। फरहान साहब कहते हैं जी, आई एम अ फाइनेंस ग्रेजुएट फ्रॉम पाकिस्तान एंड वर्किंग इन दुबई एज एन HR executive here in multinational firm. So how can I improve my communication? Because whenever I try to speak to my suggestions to reporting head, so it's become difficult for me clearly convey my message. How can I improve my digital reporting skills? देखें, थोड़ा सा पोर्शन इसका जवाब दे दूं, फिर मैं तहरे की तरफ जाऊंगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा, ये सारी जो डिजिटल स्किल्स की हम बात कर रहे हैं ना, इनसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, जब आप एक काम में जा रहे हैं जहां आपने ह्यूमन से डील करना है, वहां आपकी कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए। छोटी सी टिप है, तहम्मुल से बोला करें और
अगर आपको इंग्लिश का इशू आ रहा है, लर्न करें, सीखें और प्रैक्टिस करें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। आप और रिपोर्टिंग, डिजिटल रिपोर्टिंग स्किल्स बहुत आसान है। आप गूगल करें, लाइन लग जाएगी चीजों की जिससे आप डिजिटल और रिपोर्ट्स बनाया करें, रिपोर्ट्स रिव्यू क्या करें। अगर आप अपनी रिपोर्टिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं ना, आप तो इतना ईजी है। हम जब जिस जमाने में थे ना, हम जाके स्टॉक एक्सचेंज से एनुअल अकाउंट्स खरीद के लाते थे और देखते थे कि रिपोर्टिंग का ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, हम हमारे पास लग्जरी नहीं थी गूगल की इन चीजों की, तो ये बहुत आसान है। आप रिव्यू क्या करें, अगर आपने अपनी रिपोर्टिंग स्किल्स करनी है तो टारगेट रखेंगे जी विद इन फरवरी, अप टू एंड ऑफ फरवरी आपने कम से कम 15 रिपोर्ट्स रिव्यू करके एनालिसिस करना है उनका। खैर आपकी तरफ आता हूँ, कम्युनिकेशन इशू है, सजेशंस देते हैं अपने सीनियर को, प्रॉपर्टी कन्वे नहीं कर पाते, और इनको इशू है डिजिटल रिपोर्टिंग स्किल्स का भी। फाइनेंस ग्रेजुएट हैं बट एचआर में काम कर रहे हैं दुबई में, मल्टीनेशनल में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगेन, जो अपने सीनियर्स को आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, सीनियर्स या जो एग्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, दे हैव वेरी वेरी लिमिटेड टाइम। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी के उनके लिए प्रायोरिटी एरियाज क्या हैं, एंड हाउ डू यू लिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू दोज स्ट्रेटेजिक priority areas that are currently the buzzword that organization is focusing on. Because उनके जहन में वो constantly वो 5 बड़े टिकट आइटम्स, बिकॉज वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो चीजें ड्राइव कर रहे हैं। सो फर्स्ट ट्राई टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली, बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने जहन में क्लियर हो कि जो चीज आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, वाई मतलब बट उसका पर्पस क्या है। जब तक आपके अपने जहन में वो पर्पस क्लियर नहीं होगा कि वो जो काम आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं उसका फायदा क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो वाई आपके जहन में बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। थर्ड चीज, हमारा मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन घिचपिच हो जाती है बिकॉज वी डोंट फोकस ऑन कि हमारी स्टोरी लाइन क्या होनी चाहिए। स्टोरी लाइन के साथ हम बहुत लंबी तमहीद बांधते हैं। वी नीड टू बी वेरी आर्टिकुलेट। 10 लफ्ज सेलेक्ट करें बट वो 10 लफ्ज मीनिंग कम्युनिकेट कर दें, बजाय इसके कि आप 50 लफ्ज सेलेक्ट करें और वो 50 लफ्ज भी मीनिंग कम्युनिकेट ना कर पा रहे हो जो आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। सो थिंक थ्रू इट, और अपना मैसेज जो आप ड्राफ्ट करके आगे वर्बली कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो उसको पहले आप अपने जहन में उस स्टोरी को बनाएं, उस स्टोरी को लिखें, और उस स्टोरी को लिखने के बाद उस स्टोरी को बोलें। बिकॉज जब आप एक दफा उसको लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी टू सी कि आपका ब्रेन के अंदर जो फ्लो बन रहा है, हो सकता है वो बहुत क्लियर हो, लेकिन आप जब उसको इन राइटिंग डालें तो वो क्लियर ना हो, और जब आप वो वापस कम्युनिकेट करने किसी और को सेल करने के लिए जा रहे होते हैं तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपने नहीं लिखा होता, क्योंकि लिखने से आपको क्लैरिटी आएगी उस मैसेज के बारे में। तो एक तो ये कि कम्युनिकेशन के बारे में बहुत क्लियर हो, क्रिस्प करें उसको, और दूसरा ये देखें कि वो जो आप चीज कम्युनिकेट करने के लिए जा रहे हैं उसका फायदा क्या है अगले बंदे को। उसको जब तक आप वो फायदा नहीं दिखाएंगे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है, चाहे वो उस इंडिविजुअल का या उस एग्जेक्टिव का फायदा है जिससे आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, उसको वो वाई दिखाएं, उसको वो फायदा दिखाएं, ताकि वो आपकी बात को सुने और अहमियत दे। डिजिटल रिपोर्टिंग अगेन एचआर के लोगों के लिए, और आप क्योंकि फाइनेंस के बैकग्राउंड से हैं तो देन आई वुड अज्यूम कि नंबर्स दिखाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। एचआर में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एचआर के लोग क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो ये समझते हैं कि हम क्योंकि ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कोई मसला नहीं है नंबर्स दिखाना। तो नंबर्स दिखाएं, नंबर्स के थ्रू बात करें, डेटा के थ्रू बात करें, और डिजिटल स्किल्स आपको हेल्प करती हैं कि आप उस नंबर को डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट करें और वो डैशबोर्ड्स दिखाएं। वो डैशबोर्ड्स खुद वो स्टोरी कम्युनिकेट करेंगे जो आप स्टोरी दिखाना चाह रहे हैं। तो एचआर के लोग बहुत सारी जगहों के ऊपर मैं देखती हूँ, बहुत सी जगह इंटरेक्ट करने के लिए जाती हूँ, एचआर के लोगों से मैं पूछूं आपका व्हाट इज योर डैशबोर्ड, क्या किन केपीआईज पे आप अपने आप को मेजर करते हैं, तो मुझे वो डैशबोर्ड कहीं भी नहीं नजर आता, वो डाटा कहीं नहीं नजर आता। मोस्ट ऑफ द टाइम दे टॉक अबाउट जी एम्प्लॉय बहुत अच्छे एंगेज्ड हैं, हमने एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखा हुआ है, हम ये इवेंट करा लेते हैं, मतलब ये सारी बातें इरेलेवेंट हो जाती हैं। मेक डेटा ड्रिवन रिपोर्टिंग बिकॉज दैट इज व्हाट हेल्प्स इन स्टोरी टेलिंग। थैंक यू सो मच तायरा। आज का हमारा टाइम बस खत्म हो गया है, तो मैं रक्षंदा लास्ट वन लाइनर मैसेज फॉर आवर ऑडियंस
closing message for our audience. आवाज नहीं आ रही। आप जो है अपनी एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहें एंड बी कॉग्निजेंट ऑफ द चेंजेस दैट इज हैपनिंग। अगर और उन चेंजेस के साथ खुद को चेंज के लिए तैयार रहें, एडॉप्टेबल रहें। अगर इफ यू आर अनेबल टू चेंज, चाहे आपके पास जितनी भी अच्छी डिजिटल स्किल्स हो, कुछ भी हो, यू विल डाई। बट इफ यू आर चेंजिंग एंड इवॉल्विंग, यू विल ऑलवेज सर्वाइव एंड थ्राइव। थैंक यू सो मच। ताहिर, आपकी तरफ वन लाइनर मैसेज फॉर आवर ऑडियंस। जी, आज सुबह ही मैं एक मैसेज देख रही थी, वन ऑफ द फॉर्मूला 1 चैंपियन लिनार्डो, एंड ही वाज सेइंग कि जब आप रेस में होते हैं, उस रेस में आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने जहन में दोहराते रहें कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत जा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, फलां हो सकता है, तो बहुत सारे अननोन्स की वजह से चीजें खराब हो सकती हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये है, और उस ऑप्शन की वजह से आपके जहन में बहुत एंजाइटी जनरेट होती है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, और फिर ट्रस्ट करें उन स्किल्स के ऊपर कि मैंने अपने आप को इतना अच्छा ट्रेन कर लिया है कि मेरा माइंड और मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली वो जो मैंने ट्रेनिंग की है और मैंने स्किल्स ले हैं, वो मुझे दे विल हेल्प मी सेल थ्रू ऑल द डिफिकल्ट सिचुएशंस। सो अननोन के बारे में जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, उन चीज़ों के बारे में सोचने से बेहतर है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। आपके कंट्रोल में ये है कि आप अपने आप को अपस्किल कर सकें, आपके कंट्रोल में ये है कि आप अपने आप को ट्रेन कर सकें। सो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उस पर फोकस करें, और वो चीज़ें जब आप कंट्रोलेबल्स के बारे में सोचना शुरू करेंगे और उस पर फोकस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी आपके जहन में, और चीज़ और रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। सो सेल थ्रू इट, स्टे फोकस्ड, एंड have a fantastic ride. Life is beautiful. Just upskill yourself and enjoy the ride. थैंक यू सो मच ताहिरा, थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला साहब ने क्वेश्चन किया था, आई एम अ फ्लटर डेवलपर, व्हाट्स योर सजेशन, सजेस्ट मी सम एआई टूल्स। अब्दुल्ला साहब, मैं भी गूगल करके ही बताऊंगा, आप खुद गूगल कर लें। वैसे जहां तक मुझे पता है एंड्रॉइड स्टूडियो ईमैक्स बहुत अच्छा है फ्लटर डेवलपिंग के लिए, बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम अ फाइनेंस पर्सन। तो आप गूगल कर लें, मैंने भी गूगल ही करना है। और इसके साथ ही आज का वेबिनार का इख्तिताम करते हैं। आज वेबिनार सीरीज नंबर 40 थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ 41 नंबर के साथ हाजिर होंगे, किसी नए टॉपिक के साथ, नए लर्नेड स्पीकर्स के साथ। आप दोनों का रक्षणदार ताहिरा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी वैल्यूबल डिस्कशन रही, हमारी ऑडियंस ने जरूर फायदा उठाया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Love is everyone.